हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बस्टिंग के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट यू कैन रिवाइज योर फार्मूलास ऑन योर स्क्रीन। Let us start problem number 21. So in this question we are given that DL Services is in the business of providing home services like plumbing, sewerage line, cleaning, etc. So there is a proposal before the company to purchase a mechanized sewerage cleaning line for a sum of rupees 20 lakhs. It means this firm is purchasing a new machinery for rupees 20 lakhs. The life of the machine is 10 years. Pricing system of the company to use manual labor for the job. Presently this work is done manually. कुछ मीन्स जब आप मैनुअली वर्क कर रहे हैं तो वर्कर्स को हम वेजेज पे कर रहे हैं ड्यू टू दिस मशीन। वो जो वेजेज हैं आपकी मैनुअल कैश विल बी सेव्ड, वो आपकी सेविंग बन जाएगी। सो यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ मशीन आपको दी है 20 लाख, लाइफ आपको दी है 10 ईयर्स, डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ऑपरेटिंग कॉस्ट है ₹5 लाख पर एनम। तो लेट अस सी डाटा ऑफ दिस न्यू मशीन। So its cost is given, which is also called initial investment, rupees 20 lakhs. So life is given 5 years. And depreciation we have to charge 20% per annum on straight line basis. Depreciation is given. This is 20% per annum on straight line method, which is also called straight line basis. इट मीन्स यदि आप 20% हर साल चार्ज करेंगे तो 5 साल में जो है आपकी 20% चार्ज होकर 100% चार्ज हो जाएगी। लाइफ मशीन आपको दी है 10 ईयर्स, इंस्टेड ऑफ 5 इट इज 10 ईयर्स। तो इट मीन्स डेप्रिसिएशन 5 साल में राइट अप हो जाएगी, बट मशीन की जो लाइफ है वो है 10 साल की। एंड इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज गिवन। तो मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दी है जिसे जो 5 लाख पर एनम। फिर आपको मेंशन किया है प्रेजेंट जो हमारा मैनुअल सिस्टम है उसकी मैनुअल लेबर के लिए हमें वर्कर्स चाहिए 200 पर्सनस, और इनकी जो कॉस्ट है मैनुअल लेबर की ₹10,000 पर पर्सन पर एनम। इसमें ये हमारी सेविंग बन जाएगी। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज सेविंग्स इन मैनुअल लेबर। तो दैट विल बी 200 पर्सनस और उनको आप पे कर रहे हैं ₹10,000 पर एनम। तो इट मीन्स टोटल सेविंग आपकी बन जाएगी ₹20 लाख पर एनम। एंड कंपनी है जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ फंड्स 10%। तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है मीन्स रिक्वायर्ड रिटर्न दिस इज 10%। एंड एप्लीकेबल टैक्स रेट इज इंक्लूडिंग सरचार्ज इट इज 25%। टैक्स रेट आपको दिया है 25%। So based on this, we have to compute what is the saving or additional cost as applicable if machine is purchased. Means आपको इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है पहले एंड स्टेट वेदर इट एडवाइजेबल टू परचेज अ मशीन, और आपको डिसीजन देना है वेदर वी शुड परचेज दिस मशीन और नॉट। तो मेथड हमें मेंशन नहीं किया है, इट मीन्स वी विल कैलकुलेट एनपीवी। तो इन्वेस्टमेंट के लिए 20 लाख। अब हम प्रिपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट। So income statement we can prepare in 2 parts because you see depreciation will be charged during first 5 years. So we can show income statement like 1 to 5 year and then it is 6 to 10 year.
because total life is 10 years. So what will be savings? Savings are rupees 20 lakh per annum. So this will be same. So minus operating costs. So per annum cost of this new machine will be 5 lakh. This one is also same. So difference will be for depreciation. On this 20 lakh we will charge depreciation 20%, which will be 4 lakh. So minus depreciation. This one is 4 lakh. So it will be only during first to 5 years. So after 5 years, we can say from 6 to 10 years, there will be no depreciation. Balance will be our profit before tax, PBT. So this is 20 minus 9, 11 lakh. And this is 15 lakh. So minus tax at the rate of 25%. So this will be 11 lakh into 25%, 275. Balance is profit after tax, 825. In this you add back depreciation, which was 4 lakh. So this will be cash inflow every year, 1225. But from 6 years there is no depreciation, so tax on 15 lakh it is 25%, 375. So you get a profit after tax 1125 and no depreciation, so cash inflow is also same, 1125,000. So now we can calculate NPV of this new machine. तो NPV के लिए आप टेबल शो कर सकते हैं. So we will show years. तो आप शो कीजिए 1 to 5 year एंड ये 6 to 10 year. और कोई स्क्रैप नहीं है इसमें, कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है. सो देयर इज नो टर्मिनल कैश इनफ्लो इन कैन क्लियर. What is the cash inflow? Amounts are in rupees. This is 1225 and 1125. Apply PV factor at 10%. This you can take NP factor for 5 years, 3.791. फिर आप कैलकुलेट कीजिए एनपी फैक्टर 10 ईयर्स का, उसमें से 5 साल का कर देते हैं माइनस. सो फॉर 10 ईयर एट 10%, सो दिस फैक्टर इज 6.145. उसमें से माइनस कीजिए 3.791. सो बैलेंस इज अवर 2.354. इट मीन्स ये रह जाएगा आपका प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर एनपी फ्रॉम 6 to 10 ईयर. नाउ यू मल्टीप्लाई पीवी फैक्टर विद कैश इनफ्लो. दिस विल बी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. तो पहले 5 साल की है 1225,000 इंटू 3.791, यानी कि 1125,000 इंटू 2.354. So total present value is 72,92,225 और माइनस कर दीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट आपको मेंशन की है जिसे कि 20 lakhs. So this will be our NPV, 52,92,225. So since NPV is positive, more than 0, so we will accept this new machine. So next let us see problem 22nd. So in this question it is given that a firm is willing to purchase a new machine and is having 2 options. Information related to the options are as follows. तो आपने एक नई मशीन परचेज करनी है और उसकी 2 ऑप्शंस हैं. कॉस्ट ऑफ मशीन है ऑप्शन 1 एंड 2 में
30 लाख एंड 35 लाख। लाइफ आपको दिया है 5 ईयर 6 ईयर। सैलरी वैल्यू का मशीनरी 5 लाख एंड 5 लाख। एक्सपेक्टेड अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको ऑलरेडी दिया है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में। तो फर्म क्या की कैपिटेशन ऑन मशीन एट द स्टेटमेंट मेथड, कैपिटेशन एसएलएम के बेस पर है। कॉस्ट टू कैपिटल 14%। सो वी हैव टू इवेल्युएट बोथ ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंटेड पेबैक मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो अपने तीनों मेथड से दोनों ऑप्शन को इवेल्युएट करना है। सी बोथ ऑप्शन साइड बाय साइड ही देख लेते हैं। तो लेट अस शो द टेबल, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। लेट अस राइट ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। So first we can see cost of a machine is given. So this is our initial investment. In case of option 1 it is 30 lakh rupees, and in case of option 2 it is 35 lakh rupees. अमाउंट्स आपको चल रहे हैं रुपीज में। लाइफ आपको मेंशन की है, लाइफ ऑफ ईच मशीन विच इज डिनोटेड बाय एन नंबर ऑफ ईयर्स। ऑप्शन 1 इज 5 ईयर एंड 6 ईयर। तो लाइफ है आपके ईयर्स में। यानी इसकी सैलरी वैल्यू आपको दी है मशीन की एट एंड ऑफ लाइफ, जिसको आप शो कर रखे हैं एस एन। ऑप्शन 1 में आपकी सैलरी वैल्यू है 5 लाख, लेकिन ऑप्शन सेकंड आल्सो इट इज 5 लाख। तो उसके बेस पर आपकी कैपिटेशन कैलकुलेट हो जाएगी, कैपिटेशन पर एनम एज पर स्टेटमेंट मेथड कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। So this will be 30 minus 5, 25 lakh divided by 5. So depreciation will be 5 lakh. And in second option also 35 minus 5. This will be 30 divided by 6. So this is also 5 lakh. अब आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आपको ऑलरेडी दे रखी हैं। तो लेट अस शो नाउ इनकम स्टेटमेंट टू डिटरमिन कैश इनफ्लो। सबसे पहले आपको दी है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। सो दिस इज गिवन टू अस 775,000 एंड 825,000। तो सिंस इट इज ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बस उसमें आप डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दीजिए। दैट इज 5 लाख एंड 5 लाख। So this will be your cash inflow each year. So this is cash inflow from 1 to n number of year. इसमें आपको हर साल मिलेगा 5 साल के लिए, जिस इज 12,75,000 and this will be 13,25,000 and this will be for 6 year. अब आपको कैलकुलेट करनी है हर ऑप्शन की एनपीवी, डिस्काउंटेड पे बैक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। उसके लिए हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो फॉर ईच ईयर सेपरेटली। लेट अस सी नाउ ऑप्शन 1। तो उसका टेबल ड्रॉ करते हैं। सो लाइफ इज 5 ईयर्स, ईयर 1 2 3 4 एंड 5। सो वी राइट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। डिस्काउंट रेट आपको मेंशन किया है इसमें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 14%। तो उसके बेस पर आप इसका पीबी फैक्टर ले सकते हैं 0.877, यानी कि 0.769, 0.675, सो यानी कि 0.592 and 0.519. So let us calculate present value cash inflow. कैश इनफ्लो आपको दिया है इन रुपीज, जिसे 1275 एवरी ईयर। तो आपको कैलकुलेट करने हैं डिस्काउंटेड पे बैक। उसके लिए हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो फॉर ईच ईयर।
So let us show table present value of cash inflow. So let us see present value cash inflow for each year. So this is 1275,000 into 0.877. So this value is coming 11, 18, 175. Then 1275 into 0.769, 980, 475. Then it is 1275 into 0.675, 860, 675. यानी कि 86625. So next one is 754 800. Then 921 225. तो लास्ट ईयर में अब आपको फिफ्थ ईयर में एक को कैश इनफ्लो मिल रहा है 1275 प्लस आपको स्क्रैच में मिलेगी 5 लाख, वो भी आप इसमें ऐड कर लीजिए प्लस 5 लाख. तो इट मीन्स टोटल विल बी 1775 और उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 921 225. तो नेक्स्ट लेके सी कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, वो आप वन बाय वन ऐड करके जाइए टोटल. सो दिस इज 11 18 175. तो नेक्स्ट इज 20 98. दिस इज 650. नेक्स्ट वन 29 59 275. 37 14 075. 46 35 300. So now we can calculate first of all what is NPV. तो आप देखेंगे टोटल जो प्राइसिंग वैल्यू है आपकी दैट इज 46 35 300. उसमें से माइनस कीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट. देखिए गिवन 30 लाख, बैलेंस इज NPV 16 35 300. देन यू हैव टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक. उसमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी है 30 लाख से एंड दिस विल बी रिकवर इन बिटवीन दिस मंथ 29 एंड 37. It means discounted payback will be in between 3 and 4th year. So let us calculate discounted payback. फार्मूला बन जाएगा मिनिमम आपको चाहिए 3 years and we have to recover total investment 30 lakhs. और आप देखिए 3 साल में आपने प्रेजेंट वैल्यू रिकवर की है 29 59 275. इट मीन्स एक डिफरेंस रह गया है वो हम रिकवर करेंगे फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर विच इज 4th ईयर. दिस इज 754 divided by 754 800. This is like unitary method. To recover this amount we require 1 year. To recover this gap or this difference how much time is required. So this payback is coming. So this is coming to be 3.054 years. तो इसको आप एग्जैक्ट मंथ और डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो 3 ईयर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे. देन 0.054 इसके बना लीजिए मंथ्स और इसके बना लीजिए डेज इनटू 30 डेज. तो ये ईयर है आपका, 1 ईयर में है 12 मंथ्स और 1 मंथ में है 30 डेज. तो ये आपके नंबर ऑफ डेज बन जाएंगे. तो दिस इज कमिंग टू बी 0.054 इंटू 12 इंटू 30 20 डेज. तो एग्जैक्ट आपका पेबैक पीरियड है 3 ईयर्स एंड 20 डेज. नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. तो उसका फार्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट. तो दिस विल बी अवर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट. So total present value 46 35 300. Investment is 30 lakhs.
So this is your pay profitability index 46, 35, 300 divided by 30 lakh. Profitability index is 1.545. NPV is positive, we should accept the project. Profitability index is more than 1, so which also means we should accept. So similarly, let us see for option number 2. So let us see income statement for option number 2. इसमें देखो आपको लाइफ दी है 6 years. So let us see PV factor for 6 year. So 0.592 fourth year, fifth year is 0.519 and sixth year is 0.455. So cash inflow is 13,25,000 every year. तो 6th ईयर में आपको सैलरी वैल्यू भी मिलेगी 5 लाख की. सो इट विल बी एडेड, सो इट विल बिकम 19. जिसकी 5 लाख 13 प्लस 5 इसी जो 18 25 होगी. So now you multiply by PV factor, you will get present value of cash inflow. So this is coming 11,62,025. Next is 10, 18, 925. So then we have 894, 375. So next one becomes 784, 400. यानी कि 687, 675. Then in the 6th year, total is becoming 830, 375. So for discounted payback, we require cumulative present value. So this is coming 11,62,025 plus 10, 18, 925, 21, 80, 950. So for third year, 30, 75, 325. यानी कि 38, 59, 725. 45, 47, 400. यानी कि लास्ट ईयर की 53, 77, 775. So it means we are getting total present value. It is this one 53, 77, 775 minus कर लीजिए आप इन्वेस्टमेंट which is 35 lakh. Balance is your NPV. 1877,775. So project with higher NPV or option with higher NPV will be better. So now we can calculate profitability index. So total present value 53, 77, 775 upon investment 35 lakhs. So profitability index is 1.536. So this profitability index is more than 1, so option will be selected. Now we can calculate discounted payback. तो आपको 35 लाख रिकवर करने हैं. दिस विल बी रिकवर्ड इन बिटवीन दिस अगेन थर्ड एंड फोर्थ ईयर. तो डिस्काउंटेड पेबैक मिनिमम 3 years. तो आपको रिकवरी करनी है 35 लाख की. तो आप देखिए 3 साल में आपको प्राइसिंग वैल्यू मिल रही है 3075, 325. इसमें जो डिफरेंस है ये हम रिकवर करेंगे फ्रॉम प्राइसिंग वैल्यू कैश इनफ्लो ऑफ फोर्थ ईयर विच इज 784, 400. तो ये यूनिटी मेथड है. टू रिकवर दिस अमाउंट वी रिक्वायर 1 year. टू रिकवर दिस डिफरेंस हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड. तो ये डिस्काउंटेड पेबैक आपका आ रहा है 3.54 years.
तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 कंप्लीट ईयर्स हैं आपके, 3 ईयर एंड 0.54 को बना लीजिए मंथ्स में इंटू 12, तो जिसे करेंगे 3 ईयर एंड 0.54 इंटू 12, जिसे 6.48 मंथ्स। तो इसमें 6 मंथ्स हमारे कंप्लीट है, तो आपका डिस्काउंटेड पेबैक बन जाएगा 3 ईयर 6 मंथ्स और 0.48 के बना लेते हैं गेज। 0.48 देखो एक मंथ में है 30 डेज, सो 0.48 इंटू 30, जिसे कमिंग 14.4, वी कैन से 14 डेज, या आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 15 डेज में। तो दिस विल बी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम 23। तो इसमें देखिए आपको मेंशन किया है केसी लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू बाय एनी वन ऑफ द 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मशीन्स एक्स एंड वाई। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स आपने दोनों से एक मशीन बाय करनी है। मशीन एक्स और वाई दोनों की कॉस्ट ऑफ मशीन आपको दिया है 7 लाख 1050, उनकी लाइफ आपको दिया है 5 ईयर 6 ईयर, एनुअल इनकम आपको दिया है बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, विच इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, टैक्स रेट 25%, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, वी हैव टू डिटरमिन discounted payback period and internal rate of return for each machine and advise management which machine is better। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं मशीन एक्स। तो आपको इसमें डिस्काउंटेड पेबैक कैलकुलेट करने हैं और IRR। तो इसकी देखो इन्वेस्टमेंट ये रखी है, कॉस्ट ऑफ मशीन है आपकी 7 लाख। तो लाइफ ऑफ मशीन इज गिवन 5 ईयर्स, तो उससे डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपकी पर एनम 7 डिवाइडेड बाय 5 140। फिर आपको ये रखा है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट दिया है बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, इट मीन जिसे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 241,500 और टैक्स रेट आपको दिया है 25%। डिस्काउंट रेट इज गिवन विच इज रिक्वायर्ड रिटर्न जिसे 12%, विच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म। तो आपको डिटरमिन करना है डिस्काउंटेड पेबैक एंड IRR। डिस्काउंटेड पेबैक के लिए पहले कैश इनफ्लो कैलकुलेट करके हैं, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स से कैश इनफ्लो का फार्मूला बन जाएगा, प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर रखिए। तो हर साल सेम ही रहेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन आपकी है सेम स्ट्रेट लाइन के बेस पर। तो PBT है आपका 241,500 माइनस 140 एंड आफ्टर टैक्स टैक्स रेट है आपका 25%, मतलब डेप्रिसिएशन 140। सो दिस कैश इनफ्लो इज कमिंग। तो सॉल्व करके इसको 241,500 सो माइनस 140 इंटू 0.75 प्लस 140, जिसे कमिंग 216,125। अब आप इसका टेबल बना सकते हैं 5 ईयर्स का टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। सो ईयर इज 1 2 3 4 एंड 5। So we have cash inflow in rupees, जिसे कि 216,125। तो हर साल ये सेम है पर आपको डिस्काउंटेड पेबैक कैलकुलेट करने हैं। सो वी रिक्वायर प्रेजेंट वैल्यू सेपरेटली फॉर ईच ईयर। 216,125 216,125 216,125। अगेन वी है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 12%, जिसे कि 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567। Then we calculate present value of cash inflow। अमाउंट्स आपके रुपीज में चल रहे हैं 216,125 इंटू 0.893, तो किसी कमिंग 192,999.6, so we can say 193,000 rounded figure। Then you also calculate cumulative present value। तो फर्स्ट ईयर की सेम है 193, यानी कि 216,125 इंटू 0.797,
So this is 172, 252. So this cumulative will be 365, 252. Then for third year 216125 into 0.712. This is 153, 881. Cumulative will be 519, 133. Then for fourth year 216125 into 0.636. This is 137, 455. So cumulative will be 656, so 588. यानी कि 216125 into 0.567. This one is 122, 543. Which is 779, 131. फिर आपको IRR भी कैलकुलेट करने हैं. वट इज टोटल प्राइसिंग वैल्यू. दिस इज 779, 131. So it means now you see first of all discounted payback. So what is your investment 7 lakh. तो 7 lakh आपके रिकवर हो रहे हैं in between 656 and this one. So it means we get a discounted payback. तो मिनिमम ईयर्स हैं आपके 4 और आपको मनी रिकवर करनी है. जो आपकी इन्वेस्टमेंट है मशीन एक्स में 7 लाख. बट इन 4 years वी हैव रिकवर्ड 656, सो 588. तो डिफरेंस रिकवर होगा नेक्स्ट ईयर की प्राइसिंग वैल्यू से 122, 543. तो दिस एवरेज डिस्काउंटेड पेबैक 7 लाख. So minus 656, 588 divided by 122, 543. So this is 4.354 years. फिर आपको कैलकुलेट करनी है IRR. एक IRR प्राइसिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जिसे जो 7 लाख और जिस प्राइसिंग वैल्यू की हायर तो उसको रिड्यूस करने के लिए डिस्काउंट रेट को करते हैं इंक्रीज. तो लेट अस अप्लाई PV फैक्टर एट टू 15%. डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली 79,000 का. लेट अस सी एट 15%. PV फैक्टर 0.87, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497. And then you see what is the total present value cash inflow. तो ये सेम ही है तो आप इसको एनुटी भी बना सकते हैं. तो 5 years का आपका टोटल फैक्टर बन रहा है 1/1.15. दिस इज बिकमिंग 3.352. तो इनको कर लीजिए 3.352 इंटू 216,125. So this is coming to be 724,451. So still it is higher 724. So let us reduce further. Let us try 17%. What is your present value factor? NP ले लेते हैं at 17% for 5 years. So this is 1 divided by 1.17 for 5 years. So this is coming to be 3.19935. राउंड ऑफ भी कर सकते हैं आप. इट विल बी 3.2 राउंड की फिगर. सो व्हाट विल बी टोटल प्रेजेंट वैल्यू. दिस विल बी 216,125 into 3.2. 216,125 into 3.2. This is coming 691, 600. Now we have one value is higher, one value is lower. अब आप इनमें इंटरपोलेट कर सकते हैं. So you will get IRR. So what will be IRR of machine X? So low rate of interest is 15%. Plus present value at 15%, 724,451
और आपने इसको इक्वल करना है 7 लाख के। Means this difference we have to recover, and difference in present value at low rate 724 451 and present value at high rate 691 600. Difference in the high rate of interest 17 minus 15. So this will be our IRR. So this difference is 24 451 into 2 divided by what is difference minus 724 451 minus 691 600 32 851. So 24 451 into 2 divided by 32 851. So IRR is coming 15 plus 1.49. So it is 16.49% is our IRR. So similarly, let us calculate discounted payback and IRR for machine Y. So next, let us calculate discounted payback and IRR for machine Y. तो इसमें आप देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन आपको दी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,50,000, लाइफ इज गिवन टू बी 6 ईयर, तो इसकी लाइफ है 6 ईयर एंड एनुअल इनकम बिफोर टैक्स एंड गैप्रिएशन विच इज प्रॉफिट बिफोर गैप्रिएशन दिस इज गिवन टू बी 318,500। तो गैप्रिएशन आपको स्ट्रेट लाइन के बेस पर ही कैलकुलेट करनी है। सो कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय लाइफ, तो दिस इज कमिंग टू बी 1050 डिवाइडेड बाय 6 175 होगी। कोई स्क्रैप नहीं है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का फार्मूला है पीबी की, उसमें से गैप्रिएशन माइनस कीजिए, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स और प्लस कर लीजिए गैप्रिएशन एड बैक। तो प्रॉफिट बिफोर गैप्रिएशन है आपका 318,500 माइनस 175,000 आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.25 प्लस गैप्रिएशन 175,000। तो इसको सोल्व करके आपको आंसर मिल रहा है कैश इनफ्लो 318,500 माइनस 175,000 इंटू 0.75 प्लस 175,000। कैश इनफ्लो इज 282,625। दिस इज अवर कैश इनफ्लो। अब टेबल ड्रॉ करते हैं टू कैलकुलेट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। सो वी हैव अ लाइफ 6 ईयर 1 2 3 4 5 and 6. What is the cash inflow? This is 282 625. So 282 625. 282 625. अप्लाई पीवी फैक्टर है, डिस्काउंट रेट है आपका 12%। सो पीवी फैक्टर एट 12%। So this is 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567 and 0.507. Then you calculate present value of cash inflow और एक आपको चाहिए cumulative present value। So present value 282,625 into 0.893. So this is coming 252,384. Cumulative is also same 252,384. Then 282,625 into 0.797. This is 225, 252. And the cumulative is 477, 636. The next one is 282, 625. 201, 229.
So cumulative 678, 865. So next one is 179, 750. Cumulative 858, 615. This one is 160, 248. Cumulative is 1018, 863. 282, 625 into 0.507. This one is our 143, 291. Cumulative is 1162, 154. So what is the total pricing value now? This is 1162, 154 minus investment 10,50,000. Balance is NPV. So this is 112, 154. This is NPV, but they are not asking, they are asking discounted payback. तो इट मीन्स डिस्काउंटेड पेबैक के लिए 1050 आपका रिकवर हो रहा है इन बिटवीन दिस 5 एंड 6 ईयर. सो लेट अस अप्लाई डिस्काउंटेड पेबैक. तो मिनिमम ईयर्स हैं आपके 5 ईयर और आपको रिकवरी करनी है 10,50,000 की. 5 साल में आपकी रिकवरी है 1018, 863. इतनी जो बैलेंस है ये रिकवर होगा फ्रॉम प्राइजिंग वैल्यू कैश इनफ्लो ऑफ 6 ईयर 143, 291. So for discounted payback is coming. So this is 1050 minus 1018, 863. So divided by 143, 291. So this is coming 5.217 years. So payback period was less for machine X. So machine X was better. Now we can calculate IRR. तो IRR के लिए देखिए कैश इनफ्लो सेम है आपका, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर 6 ईयर. सो यू कैन राइट ईयर्स 1 to 6, कैश इनफ्लो 282, 625. पीवी फैक्टर अभी आपने कैलकुलेट किया है, पीवी फैक्टर है कि 12%. प्रेजेंट वैल्यू की वेरी हाई 1162, 150. इसको हमने रिड्यूस करना है. तो लेट अस ट्राई 15%. तो आप एनवीपी फैक्टर ले सकते हैं 6 ईयर का. तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15. तो दिस इज कमिंग टू बी 3.784. व्हाट इज टोटल प्राइजिंग वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. इसको आपने इक्वल करना है इन्वेस्टमेंट के 1050 के. तो दिस इज कमिंग 3.784 इंटू 282, 625. This is 1069, 453. This is still slightly higher. Let us try PV factor at 17% for 6 year. डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो आप 16% भी ले सकते हैं. 16%. This is coming 3.685. So 3.685 times 282, 625. So this is coming 1041, 473. So this value is lower than 1050. This is higher. Now we can interpolate to get the IRR. So it means IRR is, so low rate of interest is 15%. At 15% we are getting 1069, 453. But we have to recover up to 1050. Balance is extra amount to reduce this. So what is difference in present values? 10 direct difference ही mention कर रहे हैं. This difference is 1069, 453 minus 1041, 473. So difference is 27,980. इस डिफरेंस को रिकवर करने में आपको टाइम लगता है. आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है 1%. And this difference will be recovered in how much rate. So this you are getting.
जैसे कि 19453 डिवाइडेड बाय 27980, जैसे 0.695, तो आईआर आ रही है 15.695%, और राउंड ऑफ कर सकते हैं 69%, और फर्दर राउंड ऑफ करते हैं आप 15.7%. It means machine with higher IRR will be better and low discounted payment will be better. तो उस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की, तो फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.